Hello and welcome you all to Beat the Street. Today with me there is Amitabh Vatsya, who is founder of Sadhan YouTube channel as well as educational platform. He is from IIM Mumbai and having 12 years of experience into the finance, engineering, and he is with India's large corporate, even including Tata, L&T, ICICI, Hero. He has 8 years of experience in investing and generated 189% CAGR in average three of his portfolio. And in his YouTube channel, he simplify the financial jargon and also helps retail investor in better decision making. So over to you, Amitabh भाई, किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरीके से साधन स्टार्ट हुआ? बिकॉज आई फाउंड योर videos very interesting in terms of sectoral analysis. So today's topic of discussion is also sectoral analysis. But before starting this, I want to understand what is the journey behind this YouTube channel as well as educational platform which you have created. Thanks, Ms. Pai. Thanks for inviting me, and it's lovely to get invited to speak to retail audience, which has been my favorite for last 4 years. Because like you, I have been a YouTube creator, and I try to simplify market, but the journey I had is quite unique. So आपकी भी unique journey, and I have also happened to be a different kind of person before investing, and investing actually changed my life and many things beforehand. Like investing made me an independent full-time investor. So I'm a full-time investor, just to give an introduction of mine. But behind becoming a full-time investor, there is a long journey of around 12 years. So I started as a BTech from BIT Mesra, work with Tata Motors for 2 years. Then I learned, okay, how does a good corporate work? Then with that experience, went to IIM Mumbai. और IIM मुंबई में जाके फाइनेंस का कीड़ा लगना जिसे बोलते हैं. सो आई गॉट एडिक्टेड टू फाइनेंस एज अ सेक्टर. At that time, it was 2008-9 period, so it was a boom period for being a finance MBA. So, and I also learned something. I tried to learn CFA because that was a job requirement sort of to get a good job, and I landed up in a good job into ICICI Bank into project financing. But despite having that much of experience and learning of CFA and MBA with IIM Mumbai, I tried to do investing myself, and I totally I was totally aghast by the performance I made back then. और मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, despite having so much of credentials. Then market had put me down on ground zero कि नहीं, ये सब से investing का कुछ लेना देना नहीं है. So many people who think कि I've done CFA, I've done MBA, so मुझे naturally stock picking आएगी. So that clarity I got first hand. So फिर I thought that okay, I should learn myself the real meat, the real stuff. So that led me to books of to the Berkshire Hathaway letters and The Intelligent Investor, which was a remarkable book which shaped my investing journey. और वो बुक पढ़ने में काफी टाइम लगा. I completed that book in 2 attempts, but that was worth it. और उसके बाद से फिर I understood the fundamental analysis. और parallelly I changed job to structured financing, where I was dealing with capital market. Like I was a bond trader, I was structured finance, I was a corporate credit analyst for ICICI Bank. So वो सब जर्नी के का accumulation जो है, that resulted into some deeper understanding of sectors. So like I Yes. was covering renewable energy or power sector or education. So that has given me a grip on the sectors. And then I added the Buffett letters and the layer of value investing and the whole cohort of, let's say, Peter Lynch and Phil Fisher. So उसके बाद फिर I got a grip of things, and that led me to slightly better above average return into this capital market. So this has been my journey. You have superb returns. So we'll keep it in Hindi plus English, so Sure. that everybody can understand. And बाकी सर, मुझे वही लग रहा था कि क्यों आपकी वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग होती है सेक्टर एनालिसिस की, बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस. आई थिंक दैट इज हेल्पिंग, यू नो, that is that can be seen in every video of yours. And so before starting this, so we will simplify everything about the sector investing. तो सेक्टोरल इन्वेस्टिंग क्या होती है, सेक्टोरल एनालिसिस कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो एनीबडी हु इज लाइक 20 years old और 25 years का है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है इन्वेस्टिंग जर्नी, एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स विच
आई कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट, और कहाँ से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना। सो बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ सेक्टरल इन्वेस्टिंग, कि किसी को भी स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। सो ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात की हुई है, तो जस्ट टेकिंग क्यू फ्रॉम द बुक ऑफ लेट्स से चार्ली मंगर, वो इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं कि वो बोलते हैं कि पहले डेवलप योर सर्कल ऑफ कंपीटेंस। सो सर्कल ऑफ कंपीटेंस में ही एक्चुअली सेक्टर वर्ड कहीं ना कहीं छुपा हुआ है मेरे लिए, बिकॉज आप हर चीजों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यू यू आई मीन जैक ऑफ एब्सोल्युटली। ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन डजंट वर्क इन इन्वेस्टिंग, अगर आप मार्केट बीटिंग रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। So वहीं पे I recommend to someone who is new that whatever you have developed as a career or as a hobby, आपकी कहीं ना कोई expertise in past 20 years तो built हुई ही होगी। Go with that. Let's say you are you have retail, let's say you have a shop for example। मैं अगर अपने ऑडियंस की बात करूं, तो अगर कोई शॉप ओनर है, so perhaps he knows better about Imami or Colgate Palmolive than me, because मैं एब्सोल्युटली। Colgate Palmolive एक बार यूज करता हूँ, सुबह करता हूँ, बट हम्म। ही डील्स इन डे आउट, सो ही नोज कि ओके अभी लोग कोलगेट से शिफ्ट करने वाले हैं पेप्सोडेंट पे या ओरल बी पे। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू पिक अक्रॉस कि कहाँ पे यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट। तो once you shortlisted, okay, I know about, let's say, link pens, I'm a student, I know better about pens, or better, then I would recommend कि आप सेलो लिंक और ये सब के जो आईपीओ आए हैं, या आईटीसी, इस तरीके के प्रोडक्ट वाली कंपनीज से स्टार्ट करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद अ प्रोडक्ट कंपनी हैज सर्टेन एडवांटेज, जैसे एफएमसीजी इज अ बेसिकली प्रोडक्ट बिजनेस। सो एक तो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं होल यूनिवर्स को, बिफोर वी गेट इनटू सेक्टर्स, तो एक वहां पे आपको एक्सपीरियंस आता है। बिकॉज सर्विसेज में आई रिकमेंड सर्विसेज सेक्टर फॉर समबडी हु हैज वर्कड इन प्रोफेशनल सेटअप, बिकॉज हम्म। इंट्यूटिवली ही अंडरस्टैंड द मेरिट ऑफ सर्विस की कौन सी कंपनी अच्छी है। तो आप, एब्सोल्युटली। so first differentiate between a product and services. सर्विसेज। In product there is there are multiple types of sectors. So certain sectors could be aligned with government, or जहाँ पे government is a major actor, वो या। सेक्टर होते हैं। फिर दूसरे नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स हो जाते हैं। सो इस तरीके से अगर आप एक पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा लेआउट अगर आप बनाओ, तो प्रोडक्ट साइड में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर हो गया, जिसमें प्राइवेट कैपेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सर्विसेज साइड में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आईटी सर्विसेज इज अ मेजर सर्विस which we deal with. So if somebody is having IT experience, he would pick a better IT company than somebody who doesn't have any background of engineering or something like that. So starting with the strength is the whole and soul. Once, let's say, let's take a practical example of some sectors which we have picked recently, like we picked data center, we picked water. So those sectors are picked because there are the growth enablers. So some tailwinds are या। there. So टेलविंड्स। yes, we need to figure out कि tailwind कहाँ है. Once you lay out, once you picked up three sectors where you are probably you have an edge, वहां पे आप जो tailwinds either गवर्नमेंट वहां पे डाल रहा है, या कहीं ना कोई बड़ा एक्टर है, जैसे हाइपर स्केलर्स लाइक अमेजोन, फैंग स्टॉक, ये सब जो है, वो लोग एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत पावरफुल फोर्स है। सो वो लोग कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सो डेटा सेंटर इज बूमिंग इन। सो आपको एक मेजर फोर्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मी मोस्टली इट हैज बीन गवर्नमेंट, like I have been early into railway, early into defense, and even जो कैपिटल गुड सेक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं पावर ग्रिड और पीएफसी एंड ऑल दिस कंपनीज हैज अ रोल। सो पावर यस। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट हैज अ या। मेजर रोल। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक रोल होता है, और कहीं ना कहीं हाइपर स्केलर्स लाइक अमेजोन, गूगल एंड ऑल लाइक्स बिग ऑफ दैट, प्राइवेट कंपनीज। yeah, जायंट। big giant companies, they have a role. So my model, if you ask me, my favorite is that I try to figure out who is controlling the wheel। I mean, तो गाड़ी में चार लोग बैठे होते हैं, बट चारों में सिर्फ एक ड्राइवर ही होता है जो कि जानता है एक कि है। हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी एब्सोल्युटली। लोग तो राइड कर रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो राइड कर रहा है उसके पास टाइम बहुत रहता है, वो हल्ला करेगा, कर सकता है कि मैं ही हूँ इस कार का ओनर, बट एक्चुअली ही डजंट नो कि आगे गड्ढा आएगा तो करना क्या है। वो तो ड्राइवर की एबिलिटी पे डिसाइड हो जाता है। मैं इन सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करता हूँ कि कोई सेक्टर है जिसमें अदानी का सपोर्ट आ रहा है, सपोज अदानी के लिए वो फोकस्ड है, तो वो मेरे लिए बेटर हो जाता है देन जस्ट पिकिंग अप अ कंपनी विच इज
विच इज जस्ट ट्राइंग टू डू हिज ओन, उसको एक अपने बॉटम अप इन्वेस्टिंग वर्सेस अगर टॉप डाउन इन्वेस्टिंग में डिफरेंस करना हो, तो आई एम मोर ऑफ अ टॉप डाउन गाय, जो कि सेक्टर हाँ। वाली बात आपने कही। हम्म तो सेक्टर में मेजर एक्टर में भी मैं अदानी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं अदानी क्या बोल रहा है उसमें इंटरेस्टेड रहता हम्म हूँ। हम्म। दैट्स हैक आई हैव डेवलप्ड कि रिलायंस अदानी इनके एजीएम में क्या बातें हो रही हैं, दोज आर द थिंग्स टू गो ऑन। और फॉर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो बजट में क्या बात हो रही है, या मिनिस्ट्री में क्या, मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल पे क्या डिस्कशन हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, तो एब्सोल्युटली। से लेकर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सो एज फार एज आई अंडरस्टूड, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है। वंस एंड इफ यू आर ए प्रोडक्ट गाय, तो आप प्रोडक्ट वाली बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एंड इफ यू आर सर्विस तो पहले सर्विसेज, या आप प्रोफेशन में हो तो यू अंडरस्टैंड बेटर सर्विसेज, देन प्रोडक्ट्स में वेदर इट इज ए गवर्नमेंट लिंक्ड और वेदर इट इज नॉट ए गवर्नमेंट लिंक्ड, प्राइवेट लिंक्ड है या नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट लिंक्ड है तो बजटरी डॉक्यूमेंट्स में उसके रिलेटेड क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। प्राइवेट है तो प्राइवेट में जो मेजर फोर्स है, लाइक अडानी हो गया, अंबानी हो गया, या एनी बड़ी कंपनी, एनी बिग कंपनी लाइक एल हो गया। इवन अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज ऑटो क्या बोल रहा है, या हीरो मोटो क्या बोल रहा है, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेक्टर, टू टू फर्स्ट कम डाउन की यार कौन सा सेक्टर मुझे पकड़ना है। बिल्कुल। हाँ, आई थिंक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे, जहां पर ये सेक्टर की इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है। सो एनीथिंग जहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एंड वहां से हम फिर उसके बाद लाइक हम कंपनीज में जा सकते हैं। तो पहले व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो फॉर गवर्नमेंट, अगर मैं पहले गवर्नमेंट के लिए बात करूं तो गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बजट। तो बजट डॉक्यूमेंट में अगर मैंने पर्सनली, हाउ आई गॉट टू दिस आंसर, बिकॉज 2021 के बजट में मैंने 2020 में भी मैंने पढ़ा था बजट, 2021 में पढ़ के मैंने यूज किया उसको। उसमें उन्होंने एक डिफाइन किया था सनराइज सेक्टर। तो उस समय उन्होंने सनराइज सेक्टर में ड्रोन का भी नाम था, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह भी थे उस समय। बट ड्रोन सेक्टर, मुझे लगा ड्रोन तो आउट ऑफ, मतलब लग रहा है कि पहली बार ही मैं उसके बारे में सुन रहा था 2021 में। तो हाँ मैंने हाँ। उसकी फिर मैंने उसको ड्रोन की मैंने सोचा कि गवर्नमेंट इज सीरियस, एंड उसमें दो तीन बार ड्रोन के मेंशन थे। सो मैं गया कि अच्छा ड्रोन की कोई पॉलिसी भी है क्या, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया कि नहीं, गवर्नमेंट का होमवर्क चेक करते हैं। तो उसके 6 महीने पहले मैंने देखा कि उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की हुई थी ओ, बिफोर बजट। मैंने सोचा कि अच्छा 6 महीने पहले से होमवर्क हो रहा है, और बजट में चालू हो उन्होंने, गए हैं। हाँ चालू हो गया काम। तो फिर मैंने वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा कि उसमें क्या फैसिलिटीज हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने 17 अप्रूवल लगते थे, उसको अब 4 अप्रूवल्स में ही कोई ड्रोन कंपनी को स्टार्ट हो सकता है, एंड ऑल दो फेवरेबल चीजें थी। सो एक पॉलिसी हर इंडस्ट्री का, जैसे सेमीकंडक्टर ही अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो इंडिया की एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। स्टील में कोई इन्वेस्टेड है तो बिना इंडियन स्टील प्लान को देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर जस्ट ग्रोपिंग इन द डार्क, बिकॉज हम्म। प्लान के हिसाब से ही सारी बड़ी बड़ी जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, कल मैं जैसे एवरीवन। निपॉन स्टील और आर्सेलर मित्तल से मिलकर के आया, तो वो लोग भी सब लोग एक्सपेंशनरी मोड में क्यों हैं। आर्सेलर मित्तल इज जंपिंग फ्रॉम 10 MT टू 30 MT बाई या 2030। जेएसडब्ल्यू टाटा ऑल्सो वांट्स टू गो टू 50 MT क्लब। सो वो सब कहाँ से आ रहा है, वो 5 साल पहले वो डॉक्यूमेंट लिखा जा चुका है, नेशनल स्टील प्लान। उसको या आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम स्टील पे किस डायरेक्शन में है। तो एक मदर डॉक्यूमेंट जो होती है वो स्टील प्लान, या फिर रेलवे पॉलिसी, जो इंडियन रेलवे प्लान, वो प्लान्स है। तो आपको कम से कम 10-12 प्लान तो हैं जो सेक्टर को आप वहीं से स्टार्ट करो, दैट इज द बेस्ट वे। और वो प्लान्स जो होते हैं वो हो सकते हैं कभी 300 पेज के भी हो, 400 पेज के हो। तो आप उसको उसमें जिस्ट आप समझ सकते हो कि जो जो प्रीफेस होता है उसमें तो आपको क्लियरली बता देंगे कि हाँ, जिन्होंने भी लिखा होगा रेलवे मिनिस्टर ने या जिसने भी, सो ही स्पीक्स वेरी क्लियरली कि हमारा प्लान क्या है। वो उन्होंने भी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने जिस्ट ही दिया होगा। सो वो पढ़ ऑब्वियसली। के आपको समझ में आ जाएगा अच्छा पूरा पढ़ने लायक है या नहीं। सो वो वहां हो गया, और वो प्लस बजट आप देख लो तो आपका वो पक्का हो गया कि इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ गई कि ये सेक्टर इंटरेस्टिंग है, अगर डिस्पाइट रीडिंग दीज टू डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ रहा है। तो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है, आप वो लेटर पढ़ लो और बजट में मेंशन पढ़ लो, बजट में क्या मेंशन हुआ है उसके बारे में, वो तो आप ढूंढ सकते हैं। देन इफ यू थिंक ये प्रोबेबल कैंडिडेट है, सो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि उसमें मार्केट लीडर कौन है, लिस्टेड स्पेस में है। तो आप कोई भी दूसरे सेक्टर में भी आए आए तो आप, जैसे बैंकिंग ही अगर सेक्टर को मैं देखूं तो बैंकिंग में भी आप एचडीएफसी बैंक का एनुअल रिपोर्ट
पढ़ सकते हैं, या आईसीआईसी बैंक का एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, तो या कोटक महिंद्रा बैंक इज वेरी गुड, जिनका कॉन कॉल आप अटेंड कर सकते हैं। तो व्हाट मिस्टर उदय कोटक हैज टू से अबाउट बैंकिंग। सो Yeah. उन दो तीन डॉक्यूमेंट, उन दो आइदर कॉल से जहां उदय कोटक के इंटरव्यूज आप देख सकते हैं, तो आपको बैंकिंग का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो सेक्टर का, तो मार्केट लीडर को ट्रैक करना, इन शॉर्ट द हैक इज टू फाइंड आउट हु इज द मार्केट लीडर एंड व्हाट इज हिज टोन। सो Yeah. उनके गाइडेंस या आउटलुक, या कहीं पे वो एनुअल रिपोर्ट में भी जाके ढूंढ सकते हैं कोटक महिंद्रा का आउटलुक क्या है फॉर द ईयर। Yeah. सो वो एक तरीका है। तो वही चेंजिंग द मार्केट लीडर इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। भले ही वो आप इन्वेस्ट ना करें उसमें, मैं अदानी स्टॉक्स में अभी रिसेंटली 2 साल में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट आई रीड अदानी टोटल गैस का एनुअल रिपोर्ट टू जस्ट टू फिगर आउट कि एलएनजी में क्या डायरेक्शन है, सीबीजी क्या में क्या क्या चल रहा है। तो वो छोटे छोटे जो एलएनजी सीबीजी ये सब का जो ट्रेंड है वो वहां से सेट हो रहा है। है? अगर वो Okay. वहां पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब मैं अगर प्राज में इन्वेस्टेड हूँ जस्ट प्योर प्ले बेसिस की सीबीजी का Hmm. ये सबसे कंपनी है, बट दिस विल नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट until it is backed up by a big corporate giving them some project work. For example, Adani and Ambani, Mukesh Ambani की कंपनी ने भी उन्हें काफी ऑर्डर देने की बात मेंशन की है। So Mm-hmm. this is the whole plate where you can identify themes using Yeah. inside this. So आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड हियर ऑल्सो कि आप पहले गवर्नमेंट के जो बजटरी डॉक्यूमेंट्स हैं एज वेल एज जो इंडस्ट्री लीडर्स ने अपनी कॉन कॉल गाइडेंस और एनुअल रिपोर्ट में बोला है, उससे यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई ऑल्सो ऑब्जर्व इज यू कैन DRHP is the mother document of I think for sectors, because जो भी कंपनी को आईपीओ लेके आना वाला होता है, उनको पहले एक सेक्टर रिपोर्ट खरीदनी होती है या सेक्टर रिपोर्ट उनको डालनी होती है, एम्बेड करनी होती है इन देयर DRHP और RHP कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेक्टर. एंड इट्स लाइक 30-40 पेजर जो होल मतलब 500-600 पेज के DRHP और RHP में होता है. तो अगर एनी न्यू कंपनी विच इज कमिंग इनटू दिस सेक्टर, लाइक अगर इफ यू आर इन्वेस्टेड इन वाटर सेक्टर कि वाटर की कोई कंपनी, तो अभी जैसे एक कंपनी रिसेंटली आईपीओ आने वाला है जैसे एनवायरो, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल एंड हम उसका DRHP देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है या इंडस्ट्री में किस तरीके से, या ग्लोबली अगर आपको चेक करना है तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्लोबल रिपोर्ट्स आर पेड रिपोर्ट्स ऑन द गूगल इफ यू सी, तो यू कैन लाइक बाईपास दिस यूजिंग DRHP और RHP, आप पढ़ के वहां से बाईपास कर सकते हो. एंड एनुअल रिपोर्ट आई थिंक इज द बेस्ट सोर्स. सो Yes, yes. ये हो गया कि अब बेसिक्स कैसे हैं, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव कि यार आप देखोगे कि कुछ सेक्टर्स हैं जो साइक्लिकली रहते हैं हमेशा, लाइक वी टॉक अबाउट केमिकल्स, वी टॉक अबाउट स्टील्स. तो हाउ वन कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज द पीक और दिस इज द बॉटम. लाइक अगर हम देखेंगे 2017-18 में फाइनेंस, सारी फाइनेंस कंपनीज में IL&FS के कारण इशू हुआ. उसके बाद हम 2020 से देखेंगे तो रियल एस्टेट पूरा सेक्टर चला. अभी भी अगर आप देखोगे तो रियल Hmm. सेक्टर स्टिल इट इज नॉट एट एज 2008 का जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है उसको हमने बीट नहीं किया है, बट स्टिल वी आर एट हम लगभग उसके पास पहुंच चुके हैं. तो किस तरह से पता चलेगा कि कोई सेक्टर, जैसे अब हमको कैसे पता चलेगा कि निफ्टी रियलिटी का बॉटम या पीक बन गया है या किसी भी सेक्टर का बॉटम बन गया है? हाउ वन कैन आइडेंटिफाई, लाइक इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल, या कैसे हम देख सकते हैं? ओके, श्योर. सो मैं जो भी ये साइकिल है, ये बेसिकली साइकिल को समझना इंपॉर्टेंट है इसमें. इंडस्ट्री साइकिल, दो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड. वन इज द इंडस्ट्री साइकिल, वन इज द इकोनॉमिक साइकिल. इकोनॉमी जो है वो किस स्टेज में है. इकोनॉमी जो है 4 स्टेजेस में हो सकती है. आइदर वो अर्ली ग्रोथ स्टेज में हो सकती है इकोनॉमी की, अभी सब कुछ सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, सब कुछ ग्रो ग्रो हो रहा है. ग्रो हो रही है. तो मैंने उसको कुछ ये शॉर्ट कुछ लिखा भी था, तो आई जस्ट अच्छा. टेक. हाँ, सो जस्ट सेकंड. सो अगर सो 4 तरीके के साइकिल हो सकते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल से सेक्टर का जो है डिसेमिनेशन इकोनॉमिक साइकिल से होता है. कौन सा सेक्टर चलेगा, इस क्वेश्चन, फर्स्ट बिग क्वेश्चन इस इकोनॉमी हम किस स्टेज. इकोनॉमी में क्या चल रहा है? ओके. करेक्ट. ओके. तो पहले अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, 2020 से 2021 जो था, पोस्ट कोविड, जो कोविड खत्म हो गया और उसके बाद जस्ट कोविड वाज मतलब हम लोग बॉटम से निकल रहे थे, तो दैट वाज अ अर्ली इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल, रिकवरी हो रही थी. तो उस समय आप ध्यान देंगे तो साइक्लिकल सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था. जैसे कि उस समय की ऑटोमोटिव कंपनी, जैसे आपने बजाज ऑटो का नाम लिया, बजाज ऑटो, उस समय बजाज ऑटो का भाव 2000 था.
और अभी आपको पता है 9,500 के करीब है। यस तो यस। 4-5x, ये 4x तो हो गया बजाज ऑटो, मेरे लिए भी 4x हुआ था। सो हम लोगों ने बजाज ऑटो में इन्वेस्ट किया था बिकॉज रिकवरी हो रही है, और उस रिकवरी हो रही थी और सब चीजें जीरो हो चुकी थी फॉर बजाज ऑटो। इट वाज लोएस्ट बॉटम, मतलब उस समय वो रिकवरी ही था, उसके अलावा कोई डायरेक्शन ही नहीं था। और मिस्टर बजाज कहीं और इंटरव्यू दे रहे थे, राहुल बजाज, तो कंट्रोवर्सीज भी थी। सो एक एडिशनली वहां पे एक वैल्यूएशन गैप भी हो गया था। तो या तब वो तो लोकल पैरामीटर थे, बट अगर सेक्टर की बात करें तो ऑटो वाज अ सेक्टर टू पिक अप। हम लोगों ने रामकृष्णा फोर्जिंग उस समय आइडेंटिफाई किया था, वो भी 5x हो चुका है उस समय से। सो ऑटो वाज वन सेक्टर विच वाज अ साइक्लिकल सेक्टर, और वो रिकवर कर रहा था बिकॉज वी वर इन द अर्ली इकोनॉमिक रिकवरी स्टेज। दूसरे जैसे इंडस्ट्रियल भी उस समय बहुत यूज होते हैं, जब कोई भी चीज रिकवरी कर रही होती है तो उनको इंडस्ट्रियल्स जैसे समटाइम्स केमिकल की यूज होती है, तो केमिकल भी उस समय अच्छा कर रहा था, केमिकल हैज बाउंस्ड बैक। और वी कुड आइडेंटिफाई स्टॉक्स लाइक दीपक फर्टिलाइजर। सो दीपक फर्टिलाइजर नाम का फर्टिलाइजर है, वो बेसिकली केमिकल कंपनी है। सो वो उस तरीके की कंपनी को हमने आइडेंटिफाई किया क्योंकि वो रिकवरी का मेन बेनिफिशियरी होने वाला था। और उस समय रिकवरी कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट गवर्नमेंट स्टिमुलस, तो गवर्नमेंट स्टिमुलस वाले सेक्टर एब्सोल्युटली। ध्यान देने लगता। तो हम लोगों ने उस समय ट्रैक करना शुरू कर दिया था रेलवे को, क्योंकि रेलवे में अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर बुक वगैरह उसके एक साल मतलब 21 में आने शुरू हो गए थे। 21 बजट से ही रेलवे में मेंशनिंग, रेलवे मिनिस्टर ने कैपेक्स प्लान अनाउंस कर दिए थे। तो रेलवे वाज अ थीम टू पिक अप इन 2021 बिकॉज वी वर ग्रोइंग इन दैट अर्ली इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल। फिर आते हैं 2021 से 2023 का जो पीरियड है, दैट वाज मिड ग्रोथ साइकिल। तो उसमें हम अर्ली रिकवरी, फास्ट ग्रोथ हो गया, सारे स्टॉक भी रीरेट हुए थे, और उसके बाद आपको सब याद है सब सब सितंबर के खराब कचरे से लेके आपका बेस्ट स्टॉक सारे रिलेट हो गए। सारे रीरेट हो गए थे, और सितंबर में जाके ब्रेक लग गया था कि अब सितंबर 2021 के बाद लोग एक कुछ 6 महीने, एक साल के लिए स्टैंड स्टिल था। बिकॉज वो मिड मिड में होता है, मेसी मिडल होता है, तो मेसी मिडल में लोग कंफ्यूज थे अब क्या करना है। उस समय जो है वो जैसे अगर आप कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, आपने, आपको पता है कि आप एक स्टेज तक जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज मैं एक ऑटोमोटिव कंपनी हूँ, और मैं सपोज मैं टाटा मोटर्स हूँ 2005 के आसपास। जब मैं बनाना जानता हूँ कि ट्रक ऐसे बनते हैं, कार ऐसे बनते हैं, बट उसको स्केल करना है तो वो वहां पे आपको, आप खुद से नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। मिड लाइफ क्राइसिस में टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंडस्ट्री ऑल्सो। या सो इस इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से भी जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि आप अब बड़े हो रहे हैं, मतलब कि आपने ग्रोथ कर लिया अर्ली स्टेज, जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद बोलना शुरू करता है, तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही इकोनॉमी अब बड़ी हो रही है, तो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए कि अच्छा वो टूल्स को पिक करेगा। सो मिड साइकिल ग्रोथ में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डज रियली वेल। सो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारे लिए अच्छा किया उस समय, इंडिया मार्ट ने बहुत अच्छा किया। इंडिया मार्ट का आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई उसी साइकिल में हम्म। रहा है। फिर जेन टेक्नोलॉजी जो इंट्री ड्रोन या कंपनी है, ड्रोन ड्रोन्स। सर्विसेज, वो भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। सो इस तरीके की कंपनी ने उस समय बहुत अच्छा किया। सो टेक्नोलॉजी वाज the theme to be into that 2021 to 2023. या Then our third leg, which is actually we are right now maybe. So 23 के सेकंड हाफ के बाद से अगर हम बात करें पिछले एक साल से, तो लेट साइकिल मैच्योरिटी, अभी हम मैच्योर हो गए, अब लेट साइकिल में आ गए। तो उस समय डिफेंसिव सेक्टर जनरली अच्छा करते हैं, तो आप पिछले एक साल में देखेंगे फार्मा ने भी ठीक किया है, मतलब फार्मा भी डिफेंसिव सेक्टर। और उसमें यूटिलिटीज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यूटिलिटीज यानी कि जहाँ पे आपको पता है कि हाँ हमें तो प्लांट चलाना ही चलाना है, तो उस समय आपको पावर लेना ही लेना है, तो पावर यूटिलिटी लेना ही पड़ेगा। पावर सेक्टर जो है वो उनको अब तो कोई नो स्टॉपेज। अब पावर डिमांड देखिए पिछले 2 साल में हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन सुपर्ब मंथ सुपर्ब। ग्रो कर रही है। तो वो यूटिलिटीज बिकम अट्रैक्टिव इन लेट साइकिल, लेट मैच्योरिटी साइकिल। सो पावर सेक्टर पे हमने डिटेल वेबिनार भी किया था, और ट्रांसफार्मर और ये सब अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हम लोगों ने पावर में कुछ अर्ली कंपनी आइडेंटिफाई की, जैसे सिल्चर किया, अद्वैत इंफ्राटेक किया, जो कि पावर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी, क्योंकि इंडिया में थोड़ा ऑल्टरनेटिव फ्यूल का भी ज्यादा ये पुश है, तो ऑल्टरनेटिव जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के भी स्टॉक इसीलिए चले। आप देखें तो पावर का ही है बेसिकली, यूटिलिटी सेक्टर के अंदर ही सारे रिन्यूएबल आ जाते हैं, हाँ, इट्स ग्रीन ए आ सब जाते सब सेगमेंट ऑफ पावर यू कैन से हैं। लाइक रिन्यूएबल। Renewable, even capital goods like Snyder and all those have become 7-8x in last one and a half year, because वो यस। कहीं ना कहीं यूटिलिटीज को कैटर कर रहे थे। तो यूटिलिटीज में एक पावर का एक ब्रिगेड हो गया, दूसरा ब्रिगेड हो जाता है वाटर भी एक यूटिलिटी है, क्योंकि बिजली का बिल, पानी का बिल सब आप नगर निगम उसके लिए पैसे
तो यूटिलिटीज में आपको पावर के बाद वाटर इंटरेस्टिंग हो जाता है, और वाटर को एडिशनल थीम इस टाइम मिला हुआ था बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी। तो यस। वाटर को वो एडिशनल मिल गया, सो वाटर वाज अनदर थिंग टू प्ले ऑन ड्यूरिंग दिस लेट मैच्योरिटी साइकिल। सो हम लोगों ने गैस इंजीनियरिंग में काफी अच्छे बहुत पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था, बिकॉज वो बॉटम अप थी एक्चुअली। गैस इंजीनियरिंग वाज अ 2021 फाइन बिकॉज बॉटम अप हमें अच्छा लगा था, उसमें सेक्टर पे हम लोग उतने श्योर नहीं थे, बट अभी लास्ट एक साल में हम लोग सेक्टर पे पूरे श्योर है, एक साल में। तो गैस इंजीनियरिंग वाज और मेन वाटर पिक। और फिर वाटर से रिलेटेड शक्ति पंप भी वाटर से ही रिलेटेड है, इरिगेशन, तो वो भी 10x हुआ फॉर अस। तो ये सारी चीजें जो है वो लेट मैच्योरिटी साइकिल में है। देन फोर्थ आ जाता है जो कि मोस्ट dreaded पार्ट, विच इज काइंड ऑफ इकोनॉमी में रिसेशन आ सकती है। तो रिसेशन जो है उस समय कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि रिसेशन आएगा या कैसे आएगा। यूएस में थोड़ा सा तो हिंट हो रहा है, बिकॉज यूएस का भी, हम लोग यूएस से अलाइन नहीं है थोड़े बहुत, तो मतलब 30-40% तो ऑलमोस्ट कॉमन है। सो यूएस में जो इकोनॉमिक रिसेशन की बात हो रही है, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो अभी गोल्ड और जो सेफ हेवन एसेट्स हो जाते हैं, गोल्ड अच्छा हो जाता है, एक अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसके अलावा उसके अलावा रिसेशन में तो कोई भी हार्ड एसेट अच्छे हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों के इंटरव्यूज आप पढ़ेंगे तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया, अब रियल एस्टेट में उसको पार्क कर दो। तो वो या। रियल एस्टेट भी तो हार्ड वाला जो सेक्टर है, जैसे gold हो गया या रियल एस्टेट हो गया, ये सब सेक्टर अभी मतलब सेफ है। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट यहाँ से बहुत अच्छा करेगा, बट बुरा नहीं करेगा, मतलब नो रीजन कि वो खराब करे। हम्म। ये एक पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड हो गया। तो ऐसे मैं करता हूँ, बट इसमें जस्ट कैवियट ये है कि ये एक इकोनॉमिक साइकिल है, इसको मार्केट साइकिल आप बोल सकते हैं। बट एक इंडस्ट्री साइकिल जो है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है इसमें। जैसे इंडस्ट्री का अपना एक साइकिल होता है, जैसे रियल एस्टेट को मैं उससे उठाऊं तो रियल हम्म। एस्टेट का अपना एक 7 साल का साइकिल है, वो एवरी 7 ईयर्स का एक साइकिल फॉलो करती है, मतलब इट्स लाइक या। रिपीट करती है अपने आप को। तो जैसे आपने 2008 की बात की, तो 2008 से एक पीक हुआ था, तो उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा कोविड के कारण वो साइकिल थोड़ा ब्रेक हुआ। बट अगर हम अभी से 7 साल, 2024 में, हम 2017 में भी पीक था, एक तरीके का रियल एस्टेट का पीक था। उस समय के जो भाव थे उससे हम लोग ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पे आ गए, मतलब अगर हम अपने या। आसपास। और वो रेटिंग अभी हुई है, मतलब 5 साल तक कोई फ्लैट रेट थे। फ्लैट रेट पे। अभी 5 साल तक एक्चुअली 0 to 0 ही थे, अभी लास्ट 2 साल में सारा 30-40-50% ऑन एन एवरेज अप्रिशिएशन हुआ है। तो वो हम्म। बिकॉज कैचअप है, वो लास्ट साइकिल अपना कंप्लीट करेगा, फिर वो नया टर्न लेगा वहां से। तो वो 1-2 साल ये पीरियड है। तो फिर उसके बाद फिर वो उसके लिए तो उसका साइकिल भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि नॉट जस्ट दिस, ये वाला जो मैंने बताया पूरा प्लेटफॉर्म, उसके अलावा भी हमें कंपनी इंडिविजुअल सेक्टर का भी साइकिल समझना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट। गॉट इट। तो सो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया कि चार तरीके के पैटर्न्स, यू कैन से, चार तरीके के सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप सबसे पहले आप एक ग्रोथ ग्रोथ कंपनीज में आप दिमाग लगाते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेगनेंसी आती है, फिर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, डल पीरियड आता है, एंड देन इट्स कंप्लीट रिसेशन और समथिंग लाइक दैट। सो ये तो हो गया कि क्या साइकिल कैसे काम करता है। नाउ अगर हमको ये समझना है कि अभी इंडिया में कौन से सेक्टर्स हैं जो, यू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ सेक्टर्स की, रियल्टी प्लस ये प्लस वो, तो आपको अभी आपकी फाइंडिंग्स में कौन से सेक्टर ऐसा लगता है कि जो इंडिया के लिए कैन डू वेल? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई विल एड अनदर क्वेश्चन टू दिस, बिकॉज व्हाट आई ऑल्सो, सो आई ऑल्सो इन्वेस्ट, सो व्हाट आई फाउंड इज दैट इंडिया में सेक्टर रोटेशन वर्क्स, and even in the major industry, major economy, sector rotation works. So how to identify which sector and which sector to pick, as well as how sector rotation works all across, like कोई बंदे को sector rotation, if he is hearing first time, तो how you will tell him कि क्या है sector rotation and how you can play also on this. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। बहुत लोग इसको स्पेल आउट नहीं कर पाते, मतलब कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो फिर वो ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते। बहुत जगह इसको फॉर्मली आंसर भी नहीं किया गया, तो लेट मी अटेम्प्ट इट कि क्या होता है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन बेसिकली एक फिनोमेना है जो कि विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स माइंड। कोई स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है, सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
बुक है कैपिटल रिटर्न्स। तो अच्छा। कैपिटल रिटर्न्स में उन्होंने जो मैराथन कैपिटल के एमडी ने वो बुक लिखी है, मिस्टर चांसलर, एडवर्ड चांसलर। सो ही गेव मी अ वेरी गुड मेंटल मॉडल टू मी, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि कैपिटल साइकिल इन्वेस्टिंग होती है, तो आप कैपिटल साइकिल को फॉलो करो। कैपिटल साइकिल इन द सेंस कि कहाँ पे पैसा जा रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट हैक इज कि पैसा कहाँ पे जा रहा है। जैसे, और वो मैं इंट्यूटिवली, मैंने जैसा आपको अपना मॉडल बताया, तो मैं अदानी को क्यों ट्रैक कर रहा हूँ या बजट को क्यों ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर द पीपल विद पावर एंड मनी। सो वो कैपिटल साइकिल को आप को अगर कोई ट्रैक करता है, तो उसका अब कोरोलरी क्या है कि अगर आप कैपिटल साइकिल को ट्रैक कर रहे हैं, तो कैपिटल साइकिल जो है वो, जो एक बंदा है अंबानी, अगर एजीएम में बात करते हैं तो 2 साल पहले, 3 साल पहले वो जियो के बारे में बात कर रहे थे, अभी वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, तो विच मीन्स कि ही ऑल्सो चेंजेस हिज स्ट्रैटेजी। सो इसीलिए आप अगर वो चेंज कर रहे हैं, बीइंग द रिचेस्ट एशियन, सो आपको भी चेंज करनी चाहिए। तो एक नेचुरली कोरोलरी आ जाता है, इन्वेस्टर को भी प्रमोटर को ट्रैक करना पड़ता है, तो प्रमोटर चेंज कर रहा है तो हमें भी ट्रैक करना चाहिए। तो सेक्टर रोटेशन यहीं से आ रहा है कि अच्छा, मुकेश अंबानी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, तो वहां पे चलते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, शायद ग्रोथ है, वहां कुछ पैसे बन गए। फिर अब वहां पे स्टेज आ गया कि मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, तो फिर दूसरे जगह वो पैसे को अपने प्रॉफिट बुक किया, फिर दूसरे जगह पे चले गए। मे नीड नॉट बी कि अंबानी क्या बोल रहे हैं, वो कोई दूसरा, आप अदानी को सुन लो, वो कोई दूसरे सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, या कोई और नया सेक्टर, डेटा सेंटर आ रहा हो। सो आप वहां से वहां स्विच कर सकते हैं। तो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड सेक्टर रोटेशन, कि ओके। आपने एक सेक्टर में बहुत पैसे बना लिए, फिर उसके बाद यू फाउंड दूसरे कि अब, सेक्टर में। हाँ, अब ये शायद कंपाउंडिंग स्टेज में आ गया, क्योंकि वो कंपनी जो है वो फास्ट ग्रोथ में रहती है, फिर उसके बाद कंपाउंडर की तरह कन्वर्ट हो जाती है। तो आप हम्म। कंपाउंडिंग स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, देन यू कैन चूज टू डू दिस सेक्टर रोटेशन। एंड इफ यू आर एक्टिव इन्वेस्टर, उसी के लिए रिकमेंडेड है। हम्म। नॉट एवरीबॉडी की जो फुल टाइम जॉब में है वो सेक्टर रोटेशन पे शायद उसको नुकसान हो सकता है, बिकॉज ही में लीव द सेक्टर अर्ली, बिकॉज सेक्टर साइकिल आर लॉन्ग साइकिल, उसको आप समझे भी या। ना छोड़ दोगे तो फिर फोमो होगा कि नहीं, ये स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्टेड रहे। तो ये सबके लिए अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो एक्टिव है, जो इसको छोड़ के फिर दूसरा पकड़ सकता है। इट्स लाइक वो सर्कस है, वो एक एक छोड़ते हैं, फिर दूसरी पकड़ते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो वो जिसको नहीं आता है उसके लिए सेफ्टी नेट नहीं है यहाँ पे। सर्कस में तो नेट है कि आप गिरोगे तो वापस आ जाओगे। सो इन रिटेल इन्वेस्टर को सेक्टर रोटेशन ट्राई तब करना चाहिए जब वो टाइम दे सकता है। जैसे हम्म। आप पता है डीआरएचपी को पढ़ सकता है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन वाले के लिए बीच में एक सवाल आता है कि अब ये सेक्टर तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक मैच्योरिटी आ गई, अब नया सेक्टर कहीं मिल नहीं रहा है। सपोज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऑल द एक्टिव पार्टिसिपेंट, जैसा मैंने बताया, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आपको पता नहीं चला है, देन यू कैन गो टू द आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है, आरएचपी आप पढ़ोगे तो आपको कहाँ वो से पता फ्यूचर मिल जाएंगे। वहां कोई बड़े लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन छोटे लोग ही कुछ बॉटम अप वो तरीका है। तो आप अभी टॉप डाउन कर रहे हैं, बट उसमें बॉटम अप कर सकते हैं। तो ये लगा? दोनों दोनों स्किल सेट चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है जो बंदा, सेक्टर रोटेशन उसे ही रिकमेंडेड है जो टॉप डाउन कर सके और बॉटम अप करने की भी कैपेबिलिटी रखता हो। अदरवाइज इट्स नॉट टू बी अटेम्प्टेड। आप वहीं पे बैठे रहें जिसमें आपको पता है, क्योंकि वो कंपाउंड कर रहा है, तो दैट्स गुड इनफ। व्हाई टू डू सेक्टर रोटेशन। Got it. एंड वन पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर इज कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि एक्टिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए सेक्टर रोटेशन परफेक्ट है, बट व्हाट आई कैन से इज कि अगर कोई बंदा सेक्टर समझता है एंड उसको बट कंपनी समझ में नहीं आती, तो ही कैन यूज थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड में आप वो रेली प्ले कर सकते हो, इफ इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू प्ले कि भाई मुझे सेक्टर खेलना है, तो देर आर टू मेनी थीमेटिक फंड्स की आईटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो you can use ETFs also, or you can use mutual funds also. So this can be one way to invest if you don't want to go कि यार अंदर कंपनी कौन सी है फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा, और एक्टिव यू आर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर, देन you can play it passively also. पैसिवली भी, हाँ, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेक्टर और नीचे नहीं जा सकते रिटेल में, सो वो एक थीमेटिक ईटीएफ्स मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। Yeah. थीमेटिक फंड से मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को बच के रहना चाहिए। थीमेटिक फंड्स जो है वो पीक ऑफ द साइकिल वो जनरली लॉन्च होते हैं। आप अभी कल हाँ ही में हाँ। आर्टिकल आया था डिफेंस फंड के परफॉर्मेंस, जो 10-12 नॉन परफॉर्मिंग थीमेटिक फंड से, ज्यादातर डिफेंस फंड थे, वो उन्होंने एक साल पहले सबने लॉन्च किया जब हम्म। पीएसयू रैली चल रही थी। तो उन वहां से हमें, बिकॉज मार्केट ऐसा है कि वहां पे इंटेलिजेंट लोग भी हैं, वहाँ शार्क्स भी हैं, वहाँ क्रोकोडाइल्स भी हैं, और सब टाइप के जानवर हैं। क्या है?
हमें उस वाटर स्ट्रीम से पानी भी पीना है और खुद को बचाना भी है उनसे। बचाना भी है। सो आई थिंक इसके इसको बेटर प्ले वैसे भी किया जा सकता है कि जिसका ऑलरेडी 5 या 7 साल का एक्सपीरियंस हो, हम्म। जिस फंड का, और जिसने लास्ट साइकिल में किस तरीके से परफॉर्म किया था, और फंड मैनेजर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है ओवरऑल साइकिल्स में, अगर हम 2 या 3 साइकिल देख सके, क्योंकि एचडीएफसी के बहुत सारे फंड्स हैं जो दे आर लाइक 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक दे स्टार्टेड, तो वहां पर आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस देख सकते हो प्रमोट मैनेजर का। मैनेजर सो का। यू कैन प्ले वाया दिस ऑल्सो। सो राइट। ये हो गया आपका कि सेक्टर रोटेशन, हाउ टू प्ले द सेक्टर रोटेशन। नाउ कि मेरा एक और क्वेश्चन था, वी मिस दैट, कि अभी आप किस तरीके के सेक्टर्स देख रहे हो, क्योंकि लाइक इफ यू सी दैट ग्रीन हाइड्रोजन इज द टॉप ऑफ द टाउन, देन अगर आप रियल एस्टेट में देखोगे तो इन्वेंट्रीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इवन दिल्ली मार्केट की बात करें, मुंबई मार्केट की बात करें, तो एवरीबडी देयर इज अ कंस्ट्रक्शन, फिर ह्यूज कैपेक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट ऑल्सो। सो व्हाट आर योर थीम्स, व्हाट आर यू नो जो आपकी रीडिंग्स में आ रहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ओके। सो आपने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ सेक्टर विच आई एम ट्रैकिंग। मैंने एक डिटेल एनालिसिस भी की थी, एक पॉडकास्ट भी किया था, और हम्म। मैं उस पर इन्वेस्टेड भी हूँ उनमें, उस सेक्टर में जो नई कंपनियां हैं उनमें। तो वहाँ एक मुझे प्ले दिख रहा है जो कि लॉन्ग टर्म प्ले है, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म। ये शायद 1 साल 2 साल में जाके पता चलेगा कि ये कितना रिटर्न आएगा। बट इस सेक्टर में अभी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, अभी अभी बेसिकली लोग टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी असर्ट अभी तो, अभी टेक्नोलॉजी ही श्योर नहीं है एक्चुअली, टू बी रियली यू। अभी 4 टाइप के आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर होते हैं। अभी इंडस्ट्री इज जस्ट चूजिंग बिटवीन दीज 3 4। सो इस स्टेज में अभी काफी अनसर्टेनिटी है, तो इट्स नॉट फॉर समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड सेक्टर रियली वेल, और जिसके पास डीप होल्डिंग अंडरस्टैंड। कैपेसिटी नहीं हो, जिसको होल्डिंग कैपेसिटी हो, उसको ही इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन और इस टाइप की। बट अगर मैं इजी पार्ट में बात करूं, जैसे कि रियल एस्टेट की आपने बात की, तो रियल एस्टेट में आपने बहुत ही सही बात बोली कि इन्वेंटरी सबके पास पाइल अप होने वाली है। सबने और लॉन्च करना था, सबने कर दिया, सबने पैसे कलेक्ट भी कर लिए, लोग पैसे भी दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन का। अभी प्रेस्टीज ने मुंबई दिल्ली सब जगह बैंगलोर में लॉन्च कर दिया, अब उनको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन में अब वही एक साइकिल को, साइक्लिकली इसको देखें तो पहले क्या हुआ, रियल एस्टेट को अगर ब्रेक डाउन करें, मैं रियल एस्टेट के अंदर आ रहा हूँ, तो रियल एस्टेट पे डे 1 पे लॉन्च हो गया। अब आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, नाउ यू विल बाय लैंड, तो लैंड महंगी हो जाएंगी। तो अभी आप फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज ने ही रिसेंटली अभी जो यहाँ दिल्ली में लैंड खरीदा, वो बहुत ही कॉस्टली खरीदा है, और वो 2 साल पहले जो लैंड खरीद रहे थे अगर फॉर सेम एकर, वो बहुत सस्ती खरीद रहे थे। तो अब वो भी अब रुक जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अब बोलेंगे नहीं बहुत महंगी लैंड हो रही है, अब हमें एग्जीक्यूशन पे जाके काम करना है। तो वो रुकेगा, वो लॉन्च अब धीरे धीरे कम होंगे, बिकॉज उनके लिए उनका रॉ मटेरियल इज लैंड। तो वो लोग भी सेम है, वो लोग 20 साल से मार्केट में, उनको पता है कि इतने महंगे लैंड पे मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। तो वो नेचुरली वो एक इंटेलिजेंस जो है, जो इनविजिबल हैंड बोलते हैं जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में, वो इनविजिबल हैंड आकर के उन्हें रोकेगा कि भाई हो गया, अब लैंड मत खरीदो, अब जाओ, अब जाओ, अब कजारिया के पास ऑर्डर दो कि भाई टाइल्स खरीदना है मुझे, या सिंक खरीदना है मुझे, या वो खरीदना है। तो वो 1 साल बाद का जो प्रोसेस हो गया लैंड के बाद, वो सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट, और तो पहले तो सीमेंट जो स्टॉक जो है वो बेहतर करेंगे अगले साइकिल में मेरे हिसाब से। तो वो सीमेंट थोड़े दिन के लिए होगा सीमेंट, लेकिन एक कंसोलिडेशन और वो फेज में है, उसका अपना साइकिल चल रहा है। बट एज ए सेक्टर वहां पे डिमांड आएगी। बट सेफर सेक्टर इज दिस टाइल्स वन, जो कि टाइल्स का ने पिछला 2 3 साइकिल देखा हुआ है, तो आपको पता है टाइल्स इंडस्ट्री में कोई नया डिसरप्शन नहीं आया है। तो यू कुछ कैन भी गो नहीं। हम्म। फिगर आउट कि हाँ इसमें ये कंपनी अच्छी है, और इसमें बहुत ही नो ब्रेनर टाइप के स्टॉक्स वहां पे आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो वो एक जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। सो वहां पे वो एक हॉट सेक्टर है फॉर मी, और इजीली जिसको समझा जा सकता है। देन एनर्जी ट्रांजिशन इज अ मेगा थीम, उसमें एनर्जी या। ट्रांजिशन मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन उसी का एक सब पार्ट है। उसके अलावा जैसे नेचुरल गैस जो है वहां पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है, नेचुरल गैस में भी पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं। तो जो कल परसों ही अभी आईजीएल और एमजीएल और गुजरात गैस के को झटका लगा कि उनको एपीएम प्राइसेस जो है वो उनसे छीन ली गई। पहले मैं 3 साल पहले जब मैं कवर कर रहा था, तो एपीएम बोला था उनको कि आप 150% एलोकेशन था, मतलब हम्म। वो ले नहीं पा रहे थे जितना उनको दिया जा रहा था। नाउ इट हम्म। यूज टू 45% 47%। सो इंडस्ट्री में भी उस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। सो इसका कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा somebody is
पॉइजन इज समवन एज फूड। तो या इन खान रहा एब्सोल्युटली, है तो किसी ना किसी को फायदा हो रहा होगा। किसी को फायदा। हाँ, तो वो वहां पे आप ध्यान दें तो शायद अल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम में मे बी नेचुरल गैस प्लेयर्स जो हैं उनको फायदा हो, मे बी एलपीजी पे जो डील कर रहे हैं उनको फायदा हो। सो वो चीजें, एलपीजी और ये नेचुरल गैस बिकम अट्रैक्टिव। और ऐसे भी अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ट्रम्प हैज बिकम इलेक्टेड वहां पे यूएस में, तो एक क्रूड ऑयल पे एक व्यू है, एक बायस है कि अब नेगेटिव बायस है उस पे। अब वो क्रूड ऑयल उतना ज्यादा नहीं होगा बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट, मार्केट हैज अज्यूम्ड इट दैट ट्रम्प विल काइंड ऑफ टेक अप, वो सप्लाई बढ़ाएंगे। यूएस के पास काफी कैपेबिलिटी है ऑयल की, हम्म। तो ऑयल सप्लाई बढ़ेगा और थोड़ी तो शांति। प्राइसेस गिर जाएंगे। तो अब प्राइस वॉर जो है वो भी थोड़े डीस्केलेट होंगे। तो हम्म। सप्लाई आएंगी, और तो क्रूड के कारण भी वो नेचुरल गैस, क्रूड एंड नेचुरल गैस तो साथ साथ ही चलते हैं। तो वो सेक्टर में थोड़ा सा ये है कि जो वो हमारे लिए अवेलेबल होगा फॉर मे बी ऑटोमोटिव फ्यूल अवेलेबल होगा या मोस्टली उसके लिए। तो वो सब सेक्टर में आप फिर देख सकते हैं कि नेचुरल गैस को कौन यूज कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, उस वैल्यू चेन में फिर एक्शन हो सकता है। गॉट इट। तो बहुत सारे सेक्टर्स आपने बताए। अभी अगर हम सेक्टर्स से आगे बढ़ें और लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन सी कंपनीज हैं, या किस तरीके से एक सेक्टर में हम कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हेन यू आइडेंटिफाई अ कंपनी इनटू द सेक्टर। लाइक यू सेड कि यू आल्सो डू अ टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। लाइक हमारे को समझ में आता है कि जैसे किसी को प्रोडक्ट समझ में आता है, फिर उसमें गवर्नमेंट समझ में आता है, या उसमें नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट समझ में आता है, एंड यू आइडेंटिफाइड कि यार भाई ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर है, वो मेरे को समझ में भी आता है। नाउ लेट्स, अब उसमें अगर आपको 5 10 15 20 कंपनीज मिलेगी, तो हाउ टू फाइंड आउट द वन वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, और 2 और 3 इन्वेस्ट, मतलब किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, तो पहले तो मैं उस सेक्टर के मार्केट लीडर का एनुअल रिपोर्ट या आउटलुक वो मैंने ऐसे भी पढ़ा ही हुआ होता है। बिफोर दैट तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ सेक्टर में। तो मुझे जैसे फिल फिशर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो उनका एक बहुत सिंपल मंत्र है, वही फॉलो कि उसी में इन्वेस्ट करो जो या इधर मार्केट लीडर है या कॉस्ट लीडर है। या बीच में आपको करना है तो फिर आपको उसके ऑफिस जाके देखना पड़ेगा कि क्या है मामला, क्या है वो समझ क्या के चल फिर। रहा है? हाँ, क्या चल रहा है, तो आपको थोड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा इफ यू वांट टू। बट अगर आपको हैंड्स ऑफ करना है तो ये दो सेफ है। तो अगर मुझे हैंड्स ऑन होना है और मुझे लग रहा है कि मैं इस सेक्टर में कुछ लोगों को जानता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ, कि इस सेक्टर आपकी कंपनी में क्या हो रहा है या आपके कॉम्पिटिटर में क्या हो रहा है। सो उस तरीके से तो मेरे पास हैंडफुल ऑफ ऑप्शन बच जाएंगे कि एक मार्केट लीडर हो गया, एक कॉस्ट लीडर हो गया, दो ऑप्शन हो गए सपोज, या कभी कभी वो दोनों सेम ही हो जाते हैं। तो जैसे मैं कल मैं नैल्को से मिला, नैल्को जो कि एल्यूमिनियम कंपनी है। तो वो क्लेम करती है कि दे आर वर्ल्ड्स और एशियाज चीपेस्ट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर। ओ। तो बीइंग अ पीएसयू उनके पास एक्सेस टू माइंस है, तो वो चीपेस्ट है। तो इधर अगर मैं एल्यूमिनियम सेक्टर सपोज मैं देखूं तो मैं उनको पिक करूंगा कि अच्छा वहां पे क्या हो रहा है। तो वहां पे आपको एक पॉइंट ऑफ लेवरेज मिल जाता है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज में भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपने पहले ही फिक्स कॉस्ट किया हुआ है, आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, और अगर प्राइसेस बढ़ने लगी तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा रीरेट होंगी क्योंकि वो एब्सोल्युटली। ऑलरेडी सबसे कम है। तो आप बीइंग अ सीए यू कैन टोटली अप्रिशिएट कि कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो एक तो वो क्या? मैट्रिक कि कॉस्ट सस्ते सबसे कम में कौन बना रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट में जाऊंगा तो शायद मैं देखूं कि श्री सीमेंट जो है सबसे जी एफिशिएंट, सीमेंट। हाँ। तो उसकी सीमेंट एफिशिएंट है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि अल्ट्राटेक और अदानी पे आप व्यू लें। तो ये एक दो तरीके हो गए बड़े साइज जिसमें मैटर करती है। थर्ड इज कि जो उसमें यूनिक प्लेयर है, जो नीश प्लेयर है, जो जिसके बारे में आपने हियर से सुना हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ, और जो कहीं पे रिपोर्ट में आपने आइडेंटिफाई किया है, थोड़े एनालिसिस करके किए। तो ऐसे करके आपको हैंडफुल ऑफ कंपनी मिल जाएंगी। तो समटाइम्स इफ यू आर श्योर अबाउट द फाइंड विच यू नो बेटर देन द मार्केट, मतलब ये दोनों तो शायद मार्केट में पता होगा, जो तीसरा आप ढूंढेंगे शायद वो ना पता हो, तो उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन दोनों में से एक को कर सकते हैं। या दो तीन बास्केट अप्रोच लेके मैं चलता हूँ हमेशा, किसी सेक्टर में 2 से 3 कंपनियां मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो जो इसी तीनों में से, इन तीनों टाइप्स में से कुछ होती हैं, और फिर देखते हैं कि कब कैसे हो रहा है। दोनों उनका इंटर से भी देखना होता है कि ये स्टॉक इतना अप्रिशिएट किया, ये इसने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। तो और ये अगर जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी के गाइडेंस से तो बहुत इम्पैक्ट होती है। आपने भी इन्वेस्टर हैं देखा है। हाँ, उन्होंने गाइडेंस नेगेटिव दे दिया तो इनका चलती हुई गाड़ी भी रुक जाती है। सो 2 3 स्टॉक लेके चलना सेफ रहता है। और वही तभी उसी में से आपको
एलोकेशन आप चेंज कर सकते हो वंस यू नो कि अच्छा ये मार्केट लीडर तो इसके आगे नहीं सोच रहा है, सपोज कि उनकी कैपेसिटी का इतना ही प्लान है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। फिर अगर आपको दूसरा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो भी ऐसा होता है कि पहले सबसे पहले बड़े को ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद सेकंड को ऑर्डर मिलेगा, तो सेकंड वाले का जो कैपेक्स होगा थोड़ा पीछे होगा। तो आप उनके कैपेक्स साइकिल को स्टडी करके आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन कितनी कैपेक्स कर रही है और किन की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। तो मैं कैपेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं कस्टमर फीडबैक को देता हूँ कि मुझे उसका और मैं ऐसे में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं तो मेरा एक कंसेप्ट रूल है कि मैं उसके यूजर से बात करूंगा तभी इन्वेस्ट करूंगा। मतलब मैं अगर कोई डेंटल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अंटिल आई नो अ डॉक्टर हु इज यूजिंग द डेंटल प्रोडक्ट, मैं उसके फीडबैक के बिना उस प्योर प्ले बैलेंस शीट देख करके मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो कस्टमर जो बोल रहा है वही, कस्टमर इज किंग इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट, मैं फॉलो करता हूँ। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक तीन चार पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज योर मार्केट लीडर एंड उसकी कमेंट्री, योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, योर योर सराउंडिंग्स, और यू कैन से कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट फीडबैक। इफ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट देन व्हाट इज द यूज केस, किस तरीके से मार्केट में उसकी चीज चल रही है, एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ऑल अक्रॉस द कंपनी. So I think these are 4 5 things which one should know about before selecting any company, और उसी बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो अब आपने कंपनी सेलेक्ट भी कर ली है, आपने पहले सेक्टर समझ लिया, अब आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली. नाउ क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती है जो उसी सेक्टर में टॉप वैल्यूएशन पे चल रही होती है, जिनका 50 60 70 80 100 तक का वैल्यूएशन होता है. लाइक अगर एशियन पेंट की बात करें तो एक टाइम था जब दे आर you know they are like 80 100 multiple on the paint as a paint company, and some companies which are trading at below 20 below 10 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करती है एक ही सेक्टर में. तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि यार हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली, बट अब उसके वैल्यूएशन में हम किस तरीके से कि यार अब कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या हम कब तक वेट करना चाहिए कि ये वैल्यूएशन आएगा तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. हाउ यू थिंक अबाउट दिस फिनोमिना की वैल्यूएशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू आर इनटू द टॉप डाउन अप्रोच? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई मस्ट से मैम, इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से मैं एक चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपकी व्यूअर को भी मेरे हिसाब से जानना चाहिए, हर रिटेल इन्वेस्टर को जानना चाहिए कि देर इज, मतलब पता नहीं इसे किसी ने हाईलाइट किया है या नहीं, लेकिन मैंने जब स्टडी करना सीखना शुरू किया था, जैसे मैंने बताया मैंने 5 साल तो प्योरली सीखा है, मैंने बहुत फोकस करके इन्वेस्टिंग को, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखा। तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड देन देयर इज अ रीजन फॉर इट। मतलब कि जो लो पी है उसका एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यूड है जाओ खरीद लो, ये नहीं है। ये बेंजामिन ग्राहम को लोगों ने बहुत ऊपर से पढ़ा है तो वो बोलते हैं ठीक है लो है खरीद लो। वो उन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अगर वो पेज बाय पेज पढ़ा होगा तो ही वुड इंट्यूटिवली नो दिस कि वो लो भी होता है, वो एक फॉर अ रीजन होता है, और वो मिस प्राइसिंग के कारण बहुत कम चांसेस में लो होता है। मिस प्राइसिंग आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि बहुत कम। बेंजामिन हम्म. ग्राहम इसमें करती थी। मैं 30s और 40s की बात कर रहा हूँ, आज से या 60 साल। दिस वॉज अ वे टू गो। बट अब इतना इंफॉर्मेशन एज में आप वो उस पुरानी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है, मैं उसको आप गलत लेसन को लेकर के मत चलो, मैं ये बोलना चाहूंगा आपके ऑडियंस से कि लेसन ये है कि इफ प्राइस पी इज लो देयर इज अ रीजन। आप उसको चेक कर सकते हो, प्राइस टू बुक से भी चेक कर लो, मतलब सिर्फ पी पे मत बैठो, प्राइस टू बुक में भी देखो अच्छा इसको कभी इसको प्राइस टू बुक 2 से ज्यादा नहीं मिला और मार्केट लीडर को 6 का मिला हुआ है सपोज। तो आप समझ रहे हो कि वो वाई दिस, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, वो उसकी प्राइस टू बुक हमेशा 5 6 से ऊपर रहती होगी और उसका पी भी 40 50 के ऊपर ही होगा। लेकिन तो आपको इसमें ये समझना है कि उनके पास कैपेबिलिटी है जो कि प्राइस टू बुक में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा या ही भी था कि एचडीएफसी जो है था, अभी से अगर मैं पिछले साइकिल की बात करूं तो एचडीएफसी हैड ऑलवेज बिन रेटेड प्राइस टू बुक अबाउट 2, और 3 के रेंज में कोटक भी 3 के ऊपर रहती थी, 3 3 के ऊपर. उससे कम रहती थी। 1 से 2 के बीच में रहती थी, अभी उल्टा, थोड़ा उल्टा हो गया है। तो वो डायनेमिक्स, वो मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो चीजें चेंज हुई और आदित्यपुरी गए और वो सब साइकिल वो सब इंटर से चलता रहेगा। बट आप आज के डेट में जो नया इन्वेस्टर देख रहा है उसके लिए जो कल का एचडीएफसी था वो आज का आईसीआईसीआई है। सो उसकी प्राइस टू बुक आप उसको देखो, एचडीएफसी को छोड़ दो। तो प्राइस टू बुक से आप, अगर आप एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यू शुड आस्क कि अच्छा ये इंडस्ट्री लीडर जो है वो 2 की प्राइस टू बुक पे है, जो अच्छी कंपनी है, और ये किस प्राइस टू बुक पे है। तो सपोज वो अगर कोई पीएसयू स्टॉक्स ले लेते हैं, अगर उस सेक्टर का प्राइस, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो शायद 1 या 1 सवा के आसपास अगर चल रही है, या पता नहीं, अभी तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। तो आप ये देखो कि वो पीएसयू बैंक होकर के भी शायद वो पब्लिक सेक्टर बैंक की
प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको ऑनेस्टली ये हम्म, सोचना चाहिए कि ये वैल्यू जस्टिफाइड है क्या, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया इतनी इफिशिएंट है कि उसको जो आईसीआईसीआई का प्राइस टू बुक मिलना चाहिए। तो उससे आप बबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी ने या एक साइड से बात कर ली कि पीएसयू स्टॉक खरीदो, या बैंक्स आर अंडर वैल्यूड, या बहुत सारे चैनल हैं आज के डेट में, बहुत सारे ये हैं थीम्स हैं। तो वो थीम्स जो है वो कैपिटल, छोटा सा कैपिटल, मतलब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सबसे सस्ता पैसा है, वो कुछ थीम्स हम्म, करके कि यहाँ पीएसयू बैंक्स थीम्स है, उसमें पैसे आ रहे हैं हाई प्राइस टू बुक पे, वो सेफ नहीं है। सो वो एवेल्यूएशन का मेरा वो पॉइंट है। बट अच्छी कंपनी जो आइडेंटिफाई करनी है, ग्रोइंग एरिया में करनी है, तो इस नए सेक्टर में, बैंकिंग तो ओल्ड सेक्टर है। सपोज मैं एक हाइड्रोजन इकोनॉमी स्टॉक्स के बारे में बात करूं, तो वहां पे भी आपको तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि लो पी इज नॉट, अगर हाई पी है तो इसका मतलब उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था कि लो पी इज फॉर अ रीजन, तो हाई पी इज ऑल्सो फॉर अ रीजन, मतलब ये कोरोलरी है, इट्स नॉट रूल, बट हाई पी भी एक फॉर अ रीजन है। जैसे आईसीआईसी बैंक का हाई प्राइस टू बुक इज फॉर अ रीजन। तो यस, कोई कैपेबिलिटी है जो शायद आपको नहीं पता, बट मार्केट में जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हैं दे, उनको पता। तो इसलिए आप वैल्यूएशन को उतना इंपॉर्टेंस मैं नहीं देता हूं अपने मॉडल में, मैं पता करना चाहता हूं कि वो क्यों है ज्यादा। सो देन आई डिग डाउन एंड देन आई फिगर आउट आइदर ये मार्केट ने चढ़ाया हुआ है बिकॉज ऑफ सम हाइप क्रिएटेड बाय सोशल मीडिया। तो अगर वो केस नहीं है कि सोशल मीडिया का रोल नहीं है, मतलब ट्विटर पे डिस्कस नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और तब भी वो हाई पी है, देन डेफिनेटली देयर इज अ गुड रीजन टू कीप दैट स्टॉक अफ्लोट इन हाई पी। सो या आप मैं उसको देखता हूँ कि मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ तो मैं पाता हूँ कि जो कंपनियां कैपेबिलिटी बिल्ड करने में विश्वास रखती हैं, जो कि अभी वो मार्केट क्या करता है कि पुराना जो ट्रेडिशनल मार्केट के इन्वेस्टर थे वो लोग बोलते थे कि भाई तुम फोकस करो एक कंपनी पे करो, और वो बात भी सही है। बट आज के मार्केट में क्या है कि वंस वी हैव सीन कोविड एंड दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक, तो वी नो कि भाई सिंगल वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी डजंट वर्क, मतलब कि बहुत वो, और चाइना ने भी चेंज भी कर लिया भाई तब। तो कि सिंगल फोकस जो है पहले बहुत उसको वैल्यू मिलता था, अब लेकिन समय ऐसा है कि आप कोलैबोरेटिव होने का समय है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो जो कंपनियां कोलैबोरेटिव है, मतलब एक प्रोडक्ट उसने ढंग से बना लिया, दूसरे के साथ वो कहीं जॉइंट वेंचर कर रही हैं, एमओयू कर रही हैं, वैसी कंपनियां जो है वो कैपेबिलिटी बिल्ड कर रही हैं जो उनके प्राइस टू बुक में रिफ्लेक्ट होंगी, अर्निंग में वो हाई बिल्ड होगा, क्योंकि वो उस चीज को टैप कर सकती हैं, मतलब कि इट्स लाइक इफ यू हैव टू ग्रो यू हैव टू टेक अ लैडर। तो वो या लैडर लैडर की वैल्यूएशन आपके वैल्यूएशन में बिल्ट होगी, तो पी थोड़ा हाई ही होगा। तो यूनिटी फिगर आउट की उसकी कोलैबोरेशन जो है किससे कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया है, पीटीसी इंडस्ट्रीज का। उसका पी हम्म कभी भी 100 से कम था ही नहीं, और वो जब मैंने आइडेंटिफाई 4-5 हजार के आसपास मैंने उस पर पोजीशन ली थी, वो 15 हजार तक गया है, और वो 100 की पी से ऊपर ही है, अभी भी वो 160 की पी पे चल रहा है। उसमें पी के बेसिस पे तो मैं उसे इन्वेस्ट ही नहीं करता, बट मैंने उसके बियॉन्ड जाके उसकी कैपेबिलिटी को डिस्कस किया, देखा कि वो ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली यूनिक कंपनी है, वन ऑफ द यू, मतलब उसके उस टाइप की कोई कंपनी है ही नहीं। तो जो ओके, चीजें रेयर होती हैं, अब जो कोहिनूर है वो तो महंगा ही मिलेगा ना हमेशा, महंगाई मतलब में। तो आपको कोहिनूर आइडेंटिफाई करना है, उसमें वो ट्रेट है कि नहीं, मतलब उसमें उस मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट इज द राइट प्राइस टू वैल्यू की आदमी कैसा है, रादर देन द होल सेटअप। क्योंकि क्योंकि आप वो प्लांट को देख करके बहुत बार बहुत अच्छा फील नहीं आएगा, शायद लगेगा ये तो प्लांट तो उतना अच्छा नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं ना भी हो, बट कहीं ना कहीं वो जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो प्रमोटर के दिमाग में चल रही होती है, उसको अगर हम सेंस ले, तो जाके वो कहीं कहीं ना कहीं बॉटम अप इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाता है लास्ट में, अल्टीमेटली। गॉट अब टॉप डाउन आ रहा है, बट ये लास्ट का जो कॉल वैल्यूएशन वाला हो जाता है, वो मोर ऑफ अ वो बॉटम अप इन्वेस्टर वाला हो जाता है। बास्केट अप्रोच तक आप फॉलो कर सकते हो कि 3 कंपनी आप ले आए, वहां तक आपको प्रमोटर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन विनर ऑफ दिस सेक्टर, तब तो आपको वो बॉटम अप के पैरामीटर पे भी वो फिट आना चाहिए, तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं वैल्यूएशन जो करता हूँ जनरली मैं रिलेटिव नहीं करता हूँ, मैं जनरली एब्सोल्यूट वैल्यूएशन करता हूँ कि वो बंदा जो है वो अपनी जर्नी में कहाँ पे है, उस कंपनी की जो साइकिल है, तो उसमें भी फिर पीई को देखने का एक अलग तरीका है कि अर्ली स्टेज जो कंपनी है उसमें पीई वैलिड ही नहीं है। फॉर या एग्जाम्पल अद्वैत जो एसएमई है, कंपनीज तो यू कांट सी। कांट से आप जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है ये चीज, उनको लगता है कि पी हर जगह यूज होता है, पी हर जगह यूज होता ही नहीं है, वो मैच्योर कंपनी के लिए होता है। या आप मैच्योर्ड कंपनी। तो वो अगर आप अर्ली स्टेज में है तो पी देखना ही नहीं है। सो अगर लेकिन हाँ आप मैच्योर कंपनी की बात कर रहे हैं,
जो जैसे एशियन पेंट है उसमें आप पी देखेंगे तो हाँ शायद आपको थोड़ा सेंस सही मिलेगा, बट जो स्टेज है वहां पे यू शुड इग्नोर पी। Yeah, I think too many things in the terms of valuation because it's more sort of you also embedded bottom up approach also. But I think there are too many things like when you see the valuation, it's not just about valuation only. बिकॉज आपको सारी चीजें अभी तक हम सब कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। व्हेन यू कम टू द वैल्यूएशन यू आल्सो नीड टू सी दैट द इंडस्ट्री में ग्रोथ, अगर पूरी इंडस्ट्री 50% से ग्रो कर रही है, लाइक यू सी कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरी इंडस्ट्री अगर 30-40% से ग्रो कर रही है, तो उसमें ऑलरेडी आपको पी सारी कंपनीज का ज्यादा होगा और कुछ कंपनीज का कम है, तो उसका कोई रीजन होगा कि यू नो देयर इज अ रीजन विच यू मेंशन इट अप्रोप्रिएटली। तो आई थिंक इस तरीके से आप मैनेजमेंट प्लस वैल्यूएशन प्लस सेक्टर सारी थीम्स मिला के यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सेक्टर। बट अभी जितनी भी हमने बात करी, इट इज मोर कि बहुत कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर लिया फ्रॉम सेक्टर टू कंपनी। बट इसमें क्या होता है ना, डेटा बहुत ज्यादा होता है, और एक रिटेल इन्वेस्टर जो साथ साथ कुछ काम भी कर रहा है या कुछ दूसरी चीजें भी कर रहा है, वो एक सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है, बट उसके बाद भी बहुत सारा डेटा होता है जो उसको पढ़ना होता है, लाइक एनुअल रिपोर्ट, फिर आप बोल रहे हो सेक्टर लीडर, फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कहीं आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तो इतनी सारी एआई आ गया है, मशीन लर्निंग, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप स्क्रीनर को भी देखोगे तो कौन कौन नोट्स, और दे ऑल्सो मेड थिंग्स वेरी इजी। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो टू मेक इट इट फास्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ कंपनी एनालिसिस? कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग? श्योर। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है तो मैं भी पिछले 6 महीने से मैं भी इसके साथ डैबल कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने भी इसको इग्नोर किया था कन्वीनियंटली, जैसा इन्वेस्टर करते हैं कि नॉइज को इग्नोर करो, बट आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट अ नॉइज, दिस इज अ सिग्नल। सो और व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ इट, क्योंकि टाइम तो सबको बचाना होता है, तो सबके पास टाइम की। तो एआई आने से फायदा ये हुआ है कि जब मैं डेटा सेंटर पे वीडियो बना रहा था तभी एक्चुअली मैं कन्वर्ट हुआ, अदरवाइज मुझे लगता था एआई क्रिप्टो करेंसी जैसे आएगा और जाएगा टाइप ऐसा कुछ था। बट एआई से फायदा ये हुआ कि आपको पूरा आरएचपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे कुछ टूल्स हैं, जैसे perplexity.ai है, या फिर नोटबुक एलएम है, इन दोनों को मैं यूज करता हूँ टू डंप दैट डेटा, दैट दैट आरएचपी, पर्टिकुलरली आरएचपी और एनुअल रिपोर्ट को मैं वहां पे डाल देता हूँ। एंड देन आई आस्क क्वेश्चंस कि हाँ इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, गिव मी विद द नंबर्स, तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं अगर सेक्टर एनालिसिस की बात करें। फिर कुछ वो अगर वो वहां पे वो सेगमेंट जा करके मैं पढ़ लेता हूँ इंडस्ट्री वाला, तो अगर मैं सेक्टरल पिक कर रहा हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट क्या डेवलप कर रहे हैं, तो आर&डी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आर&डी एक्सपेंसेस कैसा है अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वो सब चीजें एआई से पता चल जाती हैं। या अगर मैं उसको आरएचपी में खुद पढ़ता हूँ तो देर इज अ टूल, वेरी गुड टूल कॉल ग्लॉसपी, GLOSP। तो ग्लॉसपी जो है वो हाईलाइट करने में हेल्प करता है कि अच्छा मैंने ये चीजें हाईलाइट की थी पूरे आरएचपी को, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पूरे आरएचपी ऊपर से नीचे में पढ़ा और उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, जो भी। और उसके बाद फिर वो राइट में उसको नोट करता जाता है उधर, फिर मैं ओके, उसको सो यू नीड टू जस्ट हाईलाइट इट। हाईलाइट इट एंड इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ दैट। इट्स लाइक किंडल में जो फीचर हुआ करता है, ओके। इट्स लाइक योर ऑनलाइन किंडल। तो आप ये एडिशनल वो एक ये होता है, एड ऑन होता है जो क्रोम पे भी होता है, क्रोम एड ऑन उसमें आ गया, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलोगे तो इट विल गिव एन अच्छा, वो हाईलाइटेड। पूरे नोट बनते जाएंगे। यस, आप उसको हाईलाइट कर दो, राइट में एक नोट नोट बन जाए, नोटबुक बन गया आपका कि ये हाईलाइट किया था। ओके। अब उसको आप उसको एआई को देकर के उसका एक रिपोर्ट भी बनवा सकते हो कि मैंने ये चीज हाईलाइट की, उसका रिपोर्ट भी वो इंटीग्रेटेड है विद चैट जीपीटी। तो ओके। पे क्लिक करेंगे तो उसका रिपोर्ट भी बना कर दे देगा, तो आपने जो ओ, दिमाग में स्टोर किया वो सारा एक रिपोर्ट फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो फॉर यस। क्रिएटर तो ये अच्छा टूल है। वंस आई एम रीडिंग आरएचपी एंड ऑल, जहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। देन नोटबुक एलएम इज देयर, जहाँ पे मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेरी नोट। हाँ, it's a best tool. I think it's a best tool for research राइट। because you can ask too many questions. You can ask multiple, और आंसर भी बहुत एब्सोल्यूट आता है. If you compare it with ChatGPT, the answers of Notebook LM is more enhanced. तो ओके। आई थिंक मैंने दोनों यूज किया है. मेरे को नोटबुक LM ज्यादा बेटर लगा. ग्लोस्पी आई हर्ड, सो आई विल यूज इट. थैंक यू सो Glossary मच. is additional tool which is not competing with this.
हम्म। बट ये अगर इन तीनों में बात करें तो मुझे मैंने जेमिनी ट्राई किया, नोटबुक एलएम किया, और चैट जीपीटी किया। जेमिनी इज नॉट दैट गुड। जेमिनी। हाँ, चैट जेमिनी जीपीटी ठीक में। है, और ये नोटबुक एलएम मुझे ठीक लगा, ये दोनों तो ठीक है। तो इनको यूज करके जो नए लोग हैं वो तो उनसे, बट उसमें एक और चीज जो मैं चैट जीपीटी को मैं ज्यादा अच्छा इसलिए कभी कभी यूज करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चीजें चाहिए, जैसे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिली, आरएचपी में पहली बार पढ़ा उसके बारे में, तो मैं उसको मैंने सेम क्वेश्चन तीनों पे पूछा, नहीं नोटबुक हम्म। पहले पे नहीं किया था, बट जेमिनी और परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी, इन तीनों में चैट जीपीटी गिव्स अ वेरी गुड आंसर टू दैट, एग्जैक्ट आंसर जो मुझे चाहिए था, जो मैं हाइंडसाइट पे मैं देख पाता हूँ कि हाँ ये हम्म। वाला आंसर इज मोर राइट। जैसे अगर कोई टर्म है एसबीआई, सपोज वो हम्म। वो अगर एसबीआई इज अ टर्म विच इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका कुछ अलग मतलब होगा, बट आप चैट जीपीटी विल गिव यू द आंसर की जो आप ढूंढ रहे हो, बट हम्म। परप्लेक्सिटी और अदर में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मिल जाएगा वहां पे। सो क्योंकि उनके अल्गो वैसे डिफाइंड है कि जो एसबीआई मतलब कि सब लोग एसबीआई स्टेट बैंक ही ढूंढ रहे हैं, तो वो क्राउड वाला जो आंसर मिल जाता है उसमें, तो वन है चैट जीपीटी स्टिल सेफर, उनमें थोड़ा सा लर्निंग उनकी अच्छी है मेरे हम्म। हिसाब ओके। तो आई थिंक तीन चार टूल्स आप एआई के भी यूज कर सकते हैं फॉर सेक्टर एनालिसिस। आई से। थिंक लाइक वी आर गुड टू गो फॉर दिस wrap up of this podcast because we learned about sector analysis, how to select sector, how to select companies, what is sector rotation, and how we can use the technology in the sector analysis. uh, I'd love to ask you, Amitabh bhai, आपको कैसा लगा podcast, as well as what are the things which you do in terms of learning, and what are new things which is coming on your YouTube channel so that people can join you as well. श्योर श्योर। तो बहुत मजा आया मुझे, इतने डीप लेवल पे आपने बहुत चीज़ों को मुझसे पूछा, तो मुझे अभी तैयारी करने का, मुझे भी कुछ बताने का मौका मिला, बिकॉज मैं अपने यूट्यूब पे अपने एक तरीके से चलता हूँ, तो वहाँ पे हम्म। मैं सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं करके दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये बताने का मौका नहीं मिलता कि कैसे करना है, ऐसा तो किया। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन टू ऑडियंस की ऐसे करना चाहिए। तो द मैडनेस बिहाइंड द मेथड जो है वो इस वीडियो में लोगों को क्लियर होगा कि कितना देखना पड़ता है। सो होपफुली पीपल विल अप्रिशिएट कंटेंट क्रिएटर जॉब, जैसा व्हाट Yeah, यू ट्राइंग टू डू, व्हाट absolutely. वी आर ट्राइंग टू डू, कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट अ वीडियो विच इज विच सो जब भी हम लोग, बहुत लोग वीडियो के कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाते हैं, तो दे शुड एटलीस्ट इफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दे वुड अप्रिशिएट कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है बिफोर Yeah, मेकिंग मीनिंग। absolutely. और साधन पे हम लोग इसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और मैंने इसी चीज को सेक्टर एनालिसिस को जैसे आपके साथ डिकोड किया, वैसे ही मैं स्टॉक एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को डिकोड कर रहा हूँ विद अ बंच ऑफ गाइज जो कि सीखना चाहते हैं मुझसे, उसको मैं साधन मेंटरशिप प्रोग्राम कहता हूँ। तो Okay. साधन मेंटरशिप में मैं अराउंड इट्स 26 वीक प्रोग्राम, तो अराउंड हाफ ईयर का प्रोग्राम है। उसमें मैं हर चीज को, फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे हमने आज बात नहीं की, तो उसमें मैं 2 महीने में फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करें, फॉरेंसिक कैसे करें, हाउ टू अवॉइड, तो हमने आज हाउ टू पिक पे बात की, बट एक बड़ा चैप्टर है कि हाउ टू अवॉइड दिस कोलैप्स, जो जो इतना जो हम्म। शॉर्ट टर्म में लोग बहुत अच्छी बातें कर देते हैं सोशल मीडिया के कारण, तो आपको, मुझे आजकल 10 में से 8 स्टॉक तो ऐसे आते हैं जिनकी बैलेंस शीट देखने लायक नहीं होती, तो उन सब, और लोग उसमें टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो बुरा लगता है कि भाई आप क्यों फालतू से स्टॉक्स में इतना टाइम बर्बाद करो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप फ्लैग कर देते हो कि ये कंपनियां जो है इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो दैट इज अ सर्विस, तो दैट्स काइंड ऑफ सर्विस जो आपकी जो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और somebody who wants to do it himself कि हर बार डिपेंड नहीं होना पड़े बीट द स्ट्रीट के सर्च बॉक्सेस का, तो खुद से भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट किया, तो फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर सेक्टोरल एनालिसिस जैसे आज मैंने बात किया, और फिर मैनेजमेंट क्वालिटी एनालिसिस उसमें रहता है, और लास्टली वैल्यूएशन पे हम लोग बात करते हैं, और केस स्टडी मेथड से बेसिकली लोग मुझे प्रेजेंट करते हैं जो सीख जाते हैं। और एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत सारे स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जो वो वहां से भी मेंटीज लोग मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छा। बोलते हैं कि सर ये वाला आपके पैरामीटर पे आ रहा है, अब आप बताओ इस पे क्या है, तो हम, मैं तो बहुत बार उसमें तभी हूँ। तो तो उनकी उनकी फीस फ्री हो जाती फिर। कि प्लीज, वो मुझे दे हैव अ क्लेम बैक ऑन दैट। तो वो अच्छा लगता है, तो वो एक बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी 30th नवंबर से, सो इफ Okay. समबडी ज्वाइन दैट देन विल प्रोवाइड द लिंक एंड कैन Done, गो। done, done. I'll share the link of your YouTube channel as well as the mentorship program. So yeah, that's it, guys. Thank you so much. Thank you so much, Amitabh bhai. Thank you so much, all the listeners. Thank you so much. माय प्लेजर।
Thank you.